It's now time to call upon Mr. Nish Kumar Jani. He is a full-time trader and long-term investor since 2006. His family is in business since 1978. He trades his own capital. He has seen and survived the 2008 subprime crisis and the 2020 COVID pandemic crisis. He will be speaking on BGM, trading and investing. The session will be moderated by Mr. Raju Ranjan. नमस्कार दोस्तों, मैं राजू रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं ई टेक्नॉक 2021। दोस्तों, जब भी हम किसी ट्रेडर कम्युनिटी से मिलते हैं, वहां पे एक चर्चा आमतौर पे होती है कि कोई ये स्टॉक कैसा है, मार्केट क्या लग रहा है। और एक और चर्चा जो होती है खासकर कि मैंने जो स्टॉक्स लिया वो ऊपर नहीं जा रहा है, और जब मैं सेल कर देता हूं तो ऊपर जाता है। जैसे आइडिया अभी तक होल्ड करके बैठा हूं, या एग्जांपल लें तो इंडिया मार्ट मैंने 4000 पे लिया था, लेकिन 50 रुपीज ऊपर में सेल कर दिया, आज 9000 है। सो इस तरह का ये जो प्रॉब्लम है, तो ये पॉसिबल है कि डिसिप्लिन ट्रेडिंग का नहीं होना, या रिलेटिव स्ट्रेंथ जो होता है एक टॉपिक, जो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग स्टॉक सेलेक्ट करना, बिकॉज सेम सेक्टर के एक स्टॉक आउट परफॉर्म करते हैं और दूसरे नहीं करते। सो इसी चर्चा पे बात करने के लिए आज मेरे साथ जो स्पीकर है नीतीश कुमार जानी जी, जो गुजरात से हैं। इनका एक्सपीरियंस मोर देन 15 इयर्स है, फुल टाइम ट्रेडर है। सो लेट्स वेलकम नीतीश कुमार जानी जी। Thank you, Raju sir, and thank you, Define Edge and whole team, for giving me such a wonderful opportunity to present my trading method. My name is Nisesh Kumar Jani, and I earn my living by full-time trading. I am also a third-generation investor and active since 2006. My family is associated with stock market business, and this business was started by my late grandfather in 1978. And we are still in a business who has seen all ups and downs of stock market. As a time and generation has passed, we have also improved ourselves. 2006 से 2008 तक का तो जो मार्केट है, that was a very heavy bull market. But the real problem start post 2008 US subprime crisis. And burst of global market and entire liquidity chain was disturbed, and we have seen heavy fall in across the globe. But post 2008, entire thing for investing and trading has changed. But almost it took 4 to 5 years to realize that how in a range bound market or a what we can say is a consolidation phase में भी कैसे investments करे, वो मैं उसको समझने में मुझे 4 से 5 साल निकल गए। और 2008 में एक्चुअली पोस्ट फॉल क्या हुआ कि 2008 में मेरा जो 50% होल्डिंग था वो रिलायंस ग्रुप में था और एल&टी में था। तो सब जानते हैं कि रिलायंस ग्रुप पर्टिकुलरली रिलायंस इंडस्ट्री 2008 से 2016-17 तक पूरा कंसोलिडेशन में गया। तो वहां पर बेसिक ये प्रॉब्लम हुआ कि मैं एक बायसनेस में था कि अगर रिलायंस ग्रुप नहीं चल रहा है तो मार्केट विल नॉट गो अप एंड इट विल कम डाउन। तो मेरे पास जो भी पैसे पड़े थे that I was not able to invest, and also I redeemed my mutual fund, right? So I was facing consolidation in my portfolio and idle cash was lying with me. So thereafter I become more serious that something is not going right,
So I start learning from market, and one of the best book I have ever read on a behavior finance, which is written by Sri Late Parag Parikh. I attended few seminars, read many books on market strategies, and then I become stable and learn that even without the last bull market stocks, market can go even much higher. And understand that every new bull market has its own new leaders. So you can't bet on the past leader. That took me almost 4 to 5 years. But whenever I realized that these things, I start booking losses in group, particularly ADAG group, Suzlon, Kingfisher, Deccan. There is a Lok Housing Company, Punj Lloyd, JP Group, and thereafter I came to know about more on a quantitative strategies. I was a member in American Association of Individual Investor, where I come to know about the quantitative style of investing and trading. So I just order one book and learn more about it. And thereafter I got into the momentum as well as on the quantitative factors. So let's focus on what kind of momentums are there. There are three kind of momentums. First is the absolute momentum, second is a relative momentum, and third is a dual momentum. And my today's focus is on a relative momentum. That's called the relative strength. One more thing I would like to add, that post 2008, it took me 4 or 5 years to stabilize. But I currently trade from Ahmedabad Nest, which is a very good project run by Definage and team. करंटली मैं 15 महीनों से यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ, बट जिस तरह से मेरा जो ग्रोथ हुआ है, जिस तरह से मेरा माइंडसेट चेंज हुआ है, वो ड्यू टू अहमदाबाद नेस्ट, पर्टिकुलरली मनीष भाई, विठल सर एंड मेरे जो यहाँ पर फ्रेंड्स बैठते हैं, उन्होंने मुझे काफी इम्प्रूव किया है। और बेसिकली ये जो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग सिस्टम आई है वो यहीं से निकली है। बेस मेरे पास था पर मेरे पास वे और माइंडसेट नहीं था, तो वो चीज अहमदाबाद नेस्ट में आके मुझे मिली है। तो मेरा जैसे काफी सारे लोग को प्रॉब्लम होता होगा कि भाई बुक पढ़ ली, कहीं पर वेबिनार या सेमिनार अटेंड कर लिया और वहां पर अच्छे अच्छे आपको एग्जांपल दिखाई देते हैं, कुछ फेलियर्स के भी एग्जांपल देते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज मैंने सीखी है वो है आपका यूनिवर्स क्रिएट करना। आपके पास एक बास्केट होना चाहिए जहां पर आप कॉन्स्टेंटली उस स्टॉक को ट्रैक कर पाए और उसमें ट्रेड कर पाए। नीत भाई, आपका ट्रेडिंग जर्नी तो काफी बढ़िया ये है। यस आज जो ये जो फर्स्ट जो आपका स्लाइड था, स्लाइड जो दिख रहा है वो बीजीएम ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। सो मुझे तो शुरू में ये लगा था बीजीएम, जो हम लोग किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो बीजीएम यानी वेरी गुड मॉर्निंग हमको लगा था, लेकिन आपने इसमें कुछ अलग बताया, वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग एंड मोमेंटम इन्वेस्टिंग। बहुत ही बढ़िया। यानी किसी भी ट्रेडिंग के लिए मोमेंटम इन्वेस्टिंग, ये तीनों बहुत ही जरूरी है। सो एक यदि बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैसे अपना आप स्ट्रेटजी यानी आपके स्ट्रेटजी पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ वीजीएम। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग मैंने सीखा है, मैंने पहले ही बोला कि लेट पराग परीख सर के काफी सारे वीडियोस हैं, उनकी बुक्स हैं, उनका म्यूचुअल फंड भी चलता है और मैंने उनको क्लोजली देखा है सिंस 2006-7 से। तो दे आर मेरी नजरिए से तो वो इंडिया के बेस्ट ऑफ बेस्ट वैल्यू इन्वेस्टर एंड वॉरेन बफेट कहे जाते हैं, तो मैं उनको क्लोजली फॉलो करता हूँ। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में कौन कौन सी और किस तरीके की कंपनी फॉल होती है पहले वो हम देखते हैं। हालांकि जो लोग वेबिनार सेमिनार ये देख रहे हैं उनको ऐसा कुछ करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वी विल क्रिएट द यूनिवर्स टुगेदर। तो जस्ट आपको ये समझ में आए कि कौन कौन से क्राइटेरिया है जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग में आते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि भाई मैंने एक्स कंपनी चुनी तो इसमें फिट बैठता है या नहीं बैठता है, आपको इजीली मालूम पड़ सके इसलिए।
तो उसमें फर्स्ट देखेंगे कि क्वालिटी ऑफ द बिजनेस एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। सेकंड है हाई एंट्री बैरियर विद प्रिडिक्टेबल प्रॉफिट्स, जैसे कि एमसीएक्स हो गया या तो बैंकिंग हो गया, जो बिजनेस शुरू करने के लिए आपको इजी नहीं है, काफी सारी दिक्कतें आएंगी, काफी सारे लाइसेंसेस के इश्यू है। अगर एक एक्सचेंज जैसे कि एमसीएक्स है तो दूसरा एक्सचेंज एकदम से नहीं आ पाएगा। तो ऐसे बिजनेसेस जो है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग में अगर आपको अच्छे प्राइस पे मिलता है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू आपको वैल्यूएशन मैट्रिक्स पता हो। उसके बाद जो है वैल्यू इन्वेस्टर जो है वो स्टार्टअप कंपनीज एंड टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू कंपनीज आती है तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते क्योंकि उनके वैल्यूएशंस काफी हाई रहते हैं। जैसे कि करंट एग्जांपल है जोमेटो का, दे कैन फॉल इनटू द ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्योंकि एकदम से वहां पर प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल्स भी बढ़ेगी, तो वो ग्रोथ इन्वेस्टिंग में आएगा। उसके बाद जो है सिंगल और फोकस बिजनेस कंपनीज, जैसे कि बैंकिंग बिजनेस है तो बैंकिंग में से आपको कहीं और जाना है तो विद इन फाइनेंशियल सेक्टर ही आप इन्वेस्टमेंट्स या आपके जो बिजनेस है वो एक्सपांड कर सकते हैं। इंडिया में इतना रिस्ट्रिक्शन है कि जो ग्रुप बैंकिंग में काम कर रहा है वो अदर इंडस्ट्रीज में नहीं काम कर सकता, तो इस तरह की कंपनी भी यहाँ पर आती है क्योंकि उन लोगों का एक फोकस बिजनेस है। उसके बाद कमोडिटीज और साइक्लिकल नेचर की जो कंपनीज है उस पर भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे। उसके अलावा है जीरो और लेस गवर्नमेंट या तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है ऐसी कंपनीज। कुछ साल पहले हमने इन्वेस्टमेंट किया था नोएडा टोल ब्रिज में, तो बाद दिल्ली में उसके जो ब्रिज है तो बाद में गवर्नमेंट में सब इश्यू किया और टोल सारा खत्म हो गया। तो ऐसी कंपनीज पे भी बच सकते हैं अगर वैल्यू इन्वेस्टर है तो, कि यहाँ पर गवर्नमेंट का लफड़ा है तो अवॉइड देम। उसके बाद जो है हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसे कि एशियन पेंट है, जिसको पैसे की जरूरत है नहीं और जो अच्छी तरह से अपने ही कैश फ्लो से पैसे कमा रहे हैं, तो ऐसी कंपनीज वैल्यू इन्वेस्टिंग में फॉल करेगी। उसके बाद लो कैपिटल इंटेंसिटी वाले जो भी बिजनेस आते हैं, जैसे कि आईटी कंपनी, जहाँ पर उन लोगों को इतना पैसे लाने की जरूरत नहीं है, एक स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया तो वहीं से उन लोगों का काम होता रहेगा और बार बार कैपिटल नहीं चाहिए। जैसे कि रियल एस्टेट कंपनीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज है, मेटल की कंपनीज है, जहां पर बार बार से आपको कैपिटल लानी पड़ती है एक्सपेंशन के लिए या तो डेट के लिए, तो ऐसी कंपनीज भी वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम बाय नहीं कर सकते। दूसरी है कंपनी ऐसी होनी चाहिए कि जिनके कैश फ्लोज काफी स्ट्रांग है, वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं शेयर होल्डर को, या तो अगर उनको पैसे की जरूरत नहीं है तो वो फंड करे अपने फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, जैसे कि एशियन पेंट है, एसके बेरिंग है, हीरो मोटोकॉर्प है, जो कि सालों से डेट फ्री चल रहे हैं, अपने कैश फ्लो पे अपने दम पे वो एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो ऐसी क्वालिटी कंपनी चाहिए। और जीरो डेट है तो एकदम से बढ़िया है कि कोरोना जैसा एकदम से फॉल आया, मार्केट सब बंद है, अचानक से डिमांड घट गई है, तो भी कंपनी के बिजनेसेस पे असर ना हो, ऐसी कंपनीज। बाकी ऐसी कंपनीज को हमें बाय करना है एट गुड और थ्रो अवे प्राइस, जो कि पेंडेमिक के फॉल ने दिया था। मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए कि जिसपे हम ट्रस्ट कर सके। उसके बाद जो है ग्रोथ इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग में ज्यादातर क्या होता है। यस, एक जस्ट ये जो फर्स्ट स्लाइड एक बार ओपन आप कीजिए। यस, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग में जैसे फर्स्ट जो था क्वालिटी ऑफ बिजनेस एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, सो वो आप कैसे डिसाइड करते हो कि ये क्वालिटी ऑफ बिजनेस ये कंपनी का है या नहीं है, या कुछ ऐसे एग्जांपल देकर? जैसा कि पीडी लाइट है तो हम सबको मालूम है कि हर घर की जरूरत है। मैनेजमेंट आप उसकी कमेंट्री पढ़ेंगे, एनुअल रिपोर्ट में जाएंगे तो दे हैव देयर प्रोजेक्शंस, जिस तरह से वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो ग्रोथ कर रहे हैं वहां से हमें मालूम पड़ेगा कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है, मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है, उसकी ब्रांड कितनी स्ट्रांग है और वो फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं। उन लोगों को मालूम है कि भाई फ्यूचर में कहाँ से डिमांड आएगी। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो आप कंटिन्यू कीजिए, ये बीच बीच में हम क्वेश्चन करते रहेंगे। नहीं, हाँ व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए, हाँ ठीक है। बाद में ग्रोथ इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग में बेस्ट मैंने अभी तक देखा है वो है मोतीलाल ओसवाल ग्रुप।
जो कि रामदेव अग्रवाल रिप्रेजेंट्स करते हैं। तो उन लोगों का भी म्यूचुअल फंड है और उनकी एक थियरी है QGLP करके, क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जिविटी एंड प्रोडक्टिविटी प्राइस, सॉरी। तो अगर उससे वो सब क्राइटेरिया अगर फुलफिल होते हैं तो वो लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो उनके कौन कौन से क्राइटेरिया है वो हम पहले देखेंगे कि आउट ऑफ फेवर कंपनीज है, अभी रिसेंटली में डिमांड नहीं है लेकिन इन फ्यूचर में डिमांड आ सकती है और स्ट्रांगली डिमांड आ सकती है, ऐसी कंपनीज में वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। जैसे कि अभी ऑटो में अगर कोई पॉलिसी आ गई तो एकदम से स्टॉक्स गिरेंगे, लेकिन जो लीडर है जैसे कि मारुति, तो मारुति की जो डिमांड है वो फिर से रिवाइवल हो जाएगी। करंटली आउट ऑफ फेवर है लेकिन फ्यूचर में तो उसकी डिमांड फिर से वापस आएगी। तो ऐसी कंपनीज एकदम से ग्रोथ इन्वेस्टिंग में आ जाएगी कि एक्स से वाई, या तो उसका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो परफॉर्मेंस है वो एकदम से सुधरेगा। शिफ्ट इन दूसरा है शिफ्ट इन कंजम्पशन पैटर्न एंड डेमोग्राफिक चेंज। एकदम से कंजम्पशन में इफेक्ट आ जाती है। जैसे कि 2011 के बाद आयशर मोटर का शेयर एकदम से बढ़ने लगा था बिकॉज ऑफ इट्स बुलेट। रॉयल एनफील्ड जो बुलेट वो बनाते हैं उसमें एकदम से कंजम्पशन पैटर्न शिफ्ट हो गई थी। तो ऐसी कंपनीज ग्रोथ में आती है क्योंकि अभी तक आप देखें तो उनका जो सेल्स था वो इतना कंसिस्टेंस नहीं था, लेकिन जब ये पैटर्न चेंज हुई तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20-30% के प्रॉफिट ग्रोथ आने लगी, ईयर ऑन ईयर 100% का ग्रोथ आने लगा। तो एकदम से फास्ट ग्रोइंग कंपनी हो गई। तो ऐसी कंपनीज ग्रोथ इन्वेस्टिंग में आती है। दूसरा है कंसोलिडेशन और रिडक्शन इन इंडस्ट्री कैपेसिटी लीडिंग टू इम्प्रूव्ड प्राइसिंग। अभी एक बेस्ट एग्जांपल चल रहा है टेलीकॉम सेक्टर का। वीडियोकॉन, यूनियन और आइडिया, भारती, जियो, तो काफी सारे प्लेयर थे जो कि धीरे धीरे करके वेनिश हो गए और ओनली 3 प्लेयर्स बचे। और 3 प्लेयर्स में भी ओनली 2 आर स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, दैट इज भारती एंड वन इज अ जियो, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्री। तो भारतीय अगेन इसमें फॉल होता है कि आपके जो कॉम्पिटिटर है वो गायब हो गए, आपका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ रहा है और आपकी जो डिमांड है, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसमें भी ग्रोथ है, लेकिन इंडस्ट्री जो है वो जो इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स की थी वो एकदम से छोटी हो गई और आपकी जो डिमांड है वो तो वही है। तो ऐसी कंपनीज उसमें फॉल होती है। दूसरा है कंपनीज बेनिफिटिंग फ्रॉम फंडामेंटल चेंज। फंडामेंटल चेंज एकदम से कंपनी के प्रोस्पेक्टस में हो जाता है। जैसे कि रेन इंडस्ट्री था कि चाइना में जो केमिकल इंडस्ट्री थी उन्होंने वहां पर उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया था, तो एकदम से हमारी जितनी भी कंपनी थी उसमें ग्रोथ आ गई। कुछ साल पहले हेग और ग्रेफाइट में ऐसा ही हुआ था कि वहां से उन लोगों ने प्रोडक्शन बंद कर दिया, यहाँ से इन लोगों की डिमांड आ गई। तो इस तरह की कंपनी वहां पर आती है। उसके बाद है न्यू प्रोडक्ट लॉन्च और टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू। एकदम से आप कई सालों से आप काम कर रहे हो अपनी इंडस्ट्री में और नया टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू आप लेके आते हो, जैसे कि इंडिया मार्ट में हुआ कि B2B जो सेगमेंट में वो काम करते हैं तो एकदम से वहां से उछाल आया और उन लोगों के प्रॉफिट और सेल्स बढ़ने लगे। तो ऐसे ये स्टॉक्स आते हैं। बाद में टेक ओवर, मर्जर, एक्विजिशन और री रेटिंग होता है। तो ये जो लोग हैं, ऐसी कंपनीज जो कि कमोडिटीज में ज्यादातर ये सब होता है कि एकदम से डाउन में चल रही है इंडस्ट्री, तो कोई कंपनी जाके छोटी कंपनी को ले लेती है, आगे जाके डिमांड बढ़ती है तो री रेटिंग होता है या तो डेट रिडक्शन होता है। तो अगेन ये ग्रिसिल जैसी फर्म्स जो है रेटिंग वाली, उनकी रेटिंग्स अच्छे कर देती है। तो वो ग्रोथ इन्वेस्टिंग में आता है क्योंकि ये साइक्लिकल बिजनेस है। Value investor will not never go into the cyclical businesses. दूसरा है कंपनीज बेनिफिटिंग फ्रॉम चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट। आप जैसा मैंने ये रेन इंडस्ट्री हेग का जो एग्जांपल दिया कि आपके बिजनेस के ही इंडस्ट्री के एनवायरनमेंट सब चेंज हो जाए, या तो अचानक से आपको एक्सपोर्ट का कुछ ये मिल जाए कि भाई यहाँ से आप ये चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे इंडिया में सिरेमिक का जो बिजनेस है तो वो एक्सपोर्ट को इतना ज्यादा प्रोत्साहन नहीं देते हैं, लेकिन आपके पास एडिशनल कैपेसिटी है और आपने गवर्नमेंट ने वो पॉलिसी चेंज कर दी कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। कभी बार फार्मा में होता है, ये कोविड के दौरान हुआ था कि भाई आप ऐसे ऐसे जो ड्रग्स है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर वहां से वो बैन लिफ्ट हो गया तो एकदम से उन लोगों के प्रॉफिट बढ़ने लगेंगे क्योंकि ऑलरेडी दे आर हैविंग द कैपेसिटी।
प्रोडक्शन लाइन चालू है, कैपेसिटी है, लेकिन ये एक रिस्ट्रिक्शन था तो वो खुल गया। तो ऐसी कंपनीज आती है। और ज्यादातर ग्रोथ इन्वेस्टिंग में कमोडिटी बेस्ड या साइक्लिकल नेचर कंपनीज ही आती है। ऐसा नहीं है कि ये दो तरह की कंपनी आती है, काफी सारी और भी इंडस्ट्रीज इसमें आती है जहां पर फंडामेंटल एकदम से रैपिडली चेंज होते हैं, जैसे कि पोस्ट कोविड लैब इंडस्ट्री में चेंज हो गया। जी। और जब अब कोविड इजी हो रहा है तो जुबिलेंट फूड जैसी कंपनीज चल रही है कि पब्लिक बाहर निकल के खाना खा रही है, तो उनके भी एक्सपेंशन हो गए। और ऑलवेज इस जगह पर बाय करना है कि जहाँ पर अच्छे वैल्यूएशन है। ये तो ये ब्रीफ आइडिया जो लोग इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसलिए। बाकी हमारा तो काम वैल्यू एंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग में जो कंपनीज फॉल करती है उसमें मोमेंटम में बैठना है। ओके। तो हमारा ये काम नहीं है कि हम ऐसे ऐसी कंपनीज को ढूंढे, क्योंकि मैं जो दिखाऊंगा वो हमारे पास रेडीमेड लिस्ट है और वो हर महीने उसमें थोड़ा थोड़ा सा चेंज आएगा। तो लेट्स फोकस ऑन मोमेंटम इन्वेस्टिंग। प्रशांत सर का एक बहुत ही बढ़िया कोट मैं एक वीडियो देख रहा था तो मैंने नोट कर लिया था कि आई डो नॉट वांट टू बाय व्हाट इज राइजिंग, आई वांट टू बाय व्हाट कैन सुपर परफॉर्म, एंड दिस कोट लीड मी इनटू द जर्नी ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये पूरा जो कोट है उसने मुझे पूरा चेंज कर दिया कि अभी तक जो मैं कर रहा था वो जो है वो रिटेल माइंडसेट से कर रहा था कि भाई ये स्टॉक्स बढ़ रहा है तो मैं बाय करूंगा, बट पूरा चेंज कर दिया कि भाई मुझे जो स्टॉक्स राइज हो रहे हैं वो नहीं करना है, मुझे तो सुपर आउट परफॉर्म करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एंड देन आई फेल इनटू द रिलेटिव स्ट्रेंथ कंसेप्ट। तो पहले इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। हालांकि सबको मालूम है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ जो कंसेप्ट है वो प्रैक्टिस तो काफी सालों से लोग कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली कहाँ से आया। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ कंसेप्ट फर्स्ट एचएम गार्टली ने 1920 में इंट्रोड्यूस किया था। उनके एक रिसर्च पेपर था वेलोसिटी स्टैटिस्टिक करके, जो कि जो लोग हार्मोनिक पैटर्न्स ट्रेड करते हैं वो लोग जानते हैं एचएम गार्टली को। उसके बाद जो है वो 1967 में रॉबर्ट लेवी ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था यूजिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ एज ए क्राइटेरिया फॉर इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन। उसके बाद भी काफी सालों तक ये जो कंसेप्ट था वो ऐसे ही रहा। हालांकि जो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे उन्होंने कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट नहीं किया, लेकिन इन 1993 में एक रिसर्च पेपर दो जेंटलमैन लेके आए, जेगादिस एंड टिटमैन। उसका टाइटल था रिटर्न्स टू बाइंग विनर्स एंड सेलिंग टू लूजर्स, इम्प्लीकेशंस फॉर स्टॉक मार्केट एफिशिएंसी। जब ये रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ उसके बाद जो एकेडमिक्स वाले हैं और जो प्रैक्टिशनर्स थे टेक्निकल एनालिसिस वाले, उन्होंने उसको गंभीरता से लेना शुरू किया कि भी रिलेटिव स्ट्रेंथ जो कंसेप्ट है उस पर काम करते हैं। एंड देयर आफ्टर द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टार्ट। तो उसका उन लोगों का एक फंडा था जो रिसर्च पेपर में उन्होंने बताया था कि बाइंग स्टॉक्स दैट हैव बीन परफॉर्मिंग वेल इन द पास्ट ऑन रिलेटिव बेसिस and selling those that have been performing poorly in the past will generate significant positive return over next 3 to 12 months। तो वहां से ये पूरा रिलेटिव स्ट्रेंथ का स्टडी हुआ। बाद में यूएस के जो डॉर्सी राइट है उन्होंने पॉइंट एंड फिगर में रिलेटिव स्ट्रेंथ का काफी यूज किया, वो सालों से अपने पोर्टफोलियो के लिए यूज करते हैं। और लकीली वी हैव न्यू बुक कमिंग फ्रॉम प्रशांत सर एंड वी आर ईगरली वेटिंग फॉर इट कि रिलेटिव स्ट्रेंथ पे हमारा तो कुछ नॉलेज है नहीं, वो अब और क्या हमें मिल सकता है, एक और क्राउन हमारे लिए हो जाएगा। हमारी जो ये आज का वेबिनार है उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि अगर आप मोमेंटम जानते हैं तो स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करें। या तो आप वैल्यू इन्वेस्टिंग जानते हैं या ग्रोथ इन्वेस्टिंग जानते हैं या दोनों जानते हैं, तो कहाँ पर और कौन से प्राइस पे आप मार्केट में आए और कम से कम समय के लिए आप मार्केट में बने रहे और अच्छे रिटर्न लेके जाए। दूसरा,
कि आप जो स्टॉक्स है उसको कहाँ निकले वो इम्पोर्टेंट है। एंट्री एंड एग्जिट, एग्जिट भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि प्रशांत सर बोलते हैं कि जो राइज हो रहा है सब हम बाय नहीं करेंगे, हमें तो सुपर परफॉर्म करना है, ये इम्पोर्टेंट है। तो मेन इम्पोर्टेंट है वो है यूनिवर्स को क्रिएट करना, कि आप यूनिवर्स कैसे क्रिएट करें। जैसे मैंने पहले ही बोला कि आपका यूनिवर्स और मेरा यूनिवर्स एक ही रहेगा, हम एक ही स्टॉक में ट्रेड करेंगे। तो फर्स्ट जो है वो मैं म्यूचुअल फंड पिक करता हूँ, पराग परिक का म्यूचुअल फंड। उन लोगों के पास 2-3 स्कीम्स है और दे आर बेसिकली इन्वेस्टिंग ओनली इन वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज। They will never invest in a commodity or a cyclical nature business companies. तो उनके जो पोर्टफोलियो के स्टॉक्स है वो फर्स्ट हमारे यूनिवर्स बन गए। ओके। सेकंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, जो कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं सालों से, और उन लोगों का भी एकदम से बढ़िया रिकॉर्ड है। ओके, ग्रेट। तो उनके जितने भी म्यूचुअल फंड्स के, इक्विटी के म्यूचुअल फंड के जो भी स्कीम्स है, उनमें जो स्टॉक्स है वो हम हमारे यूनिवर्स में लेंगे। ओके। और हर आप महीने, हाँ, वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए जो ये पराग पारिक म्यूचुअल फंड और ग्रोथ यस, इन्वेस्टिंग मोतीलाल, मोतीलाल, तो हाँ, आपका यूनिवर्स बन गया। बन गया। अब ठीक है। जो है वो हमारा मेन फोकस रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम, कैसे उनके स्टॉक्स को हम जो है वो अपने मोमेंटम में बिठाए और ट्रेड एंड इन्वेस्ट करें। ग्रेट। सो उसमें भी आप फिल्टर और करते हैं थ्रू रिलेटिव स्ट्रेंथ। हाँ, और हर महीने की 10 तारीख को आपको उनकी वेबसाइट पे से ये फ्री ऑफ कॉस्ट उनके जो पोर्टफोलियोज है वो मिल जाएंगे, डिटेल पोर्टफोलियो मिल जाएंगे। अच्छा। तो जस्ट आप वहां से ही सिर्फ लिस्ट उठा लो और अब हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसमें सिर्फ डालना ही है। वंस इन अ ओके। मंथ आपका पोर्टफोलियो एक बार आप देख लीजिए, अगर कुछ नया आया है तो ऐड करिए, अगर कुछ गया है तो निकल जाइए। ओके। ओके। तो ये यूनिवर्सल रहेगा, इसमें मेरा कुछ फॉर्मूला नहीं है कि मैं ये नहीं बोल सकता कि सीमेंट में बाई था या नहीं था, ये आपको क्यों नहीं करना चाहिए था। जो सिस्टम में है, जो हमारे रडार में है, बस वही है। बिल्कुल। तो अब फोकस करते हैं रिलेटिव मोमेंटम यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ पे। स्टैंडर्ड रिलेटिव स्ट्रेंथ की जो फॉर्मूला है वो है क्लोज ऑफ अ सिक्योरिटी ए डिवाइड बाय क्लोज ऑफ अ सिक्योरिटी बी। तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी कि भाई इसका वैल्यू ये है, और आप कौन से भी टाइम फ्रेम पे उसको प्लॉट कर सकते हैं, मिनट टू मिनट डेटा पे भी प्लॉट कर सकते हैं, वीक टू डे, वीक, मंथ, क्वार्टर, ईयर, जो भी आपका स्टाइल है या आपको जो सूट करता है उस पर आप सूट कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो फोकस है वो है P&F पे, पॉइंट एंड फिगर पे रिलेटिव स्ट्रेंथ, वो ही आज हम यूज करेंगे। काफी सभी जितने भी चार्टिंग मेथड है, जैसे कि रैंको है, उस पर भी आप रिलेटिव स्ट्रेंथ के चार्ट प्लॉट कर सकते हो, कैंडल पे भी कर सकते हो। लेकिन हमारा जो ये नॉइजलेस ऑब्जेक्टिव नेचर है पॉइंट एंड फिगर का, उसका हम यूज करेंगे। ओके। वही हमारी स्ट्रेंथ है। इंटरप्रिटेशन अब देखते हैं कि हमें जब हम रेशियो चार्ट प्लॉट करते हैं तो हमें क्या दिखेगा। अगर आपकी जो सिक्योरिटी है वो राइज कर रही है और आपका जो बेंचमार्क है वो नीचे जा रहा है, तो आप उसको आउट परफॉर्म कर रहे हो, तो एक बड़ी अच्छी बात है। ओके। उसके तो बाद अगर इसका मतलब क्या है कि रेशियो मेरा ऊपर जा रहा है, करेक्ट? यस, रेशियो ऊपर जा रहा है। एग्जैक्टली। इवन मार्केट नीचे जा रहा है फिर भी मेरा स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहा है, मेरा स्टॉक्स ऊपर जा रहा है। मैं मार्केट को तो फॉल से बच ही रहा हूँ, लेकिन मैं प्रॉफिट भी बना रहा हूँ। ओके। तो हाँ, उसके बाद मेरी सिक्योरिटी राइज हो रही है, मेरा स्टॉक राइज हो रहा है, लेकिन बेंचमार्क इंडेक्स है वो राइजिंग लेस, यानी कि वो इतनी तेजी से नहीं ऊपर जा रहा है। मेरे सिक्योरिटी के साथ मेरी सिक्योरिटी बेंचमार्क से भी ज्यादा फास्ट जा रही है ऊपर। तो अगेन मैं मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा हूँ। उसके बाद मेरी सिक्योरिटी राइज हो रही है, यानी कि मेरा जो स्टॉक्स है वो राइज हो रहा है, लेकिन मार्केट
मेरे स्टॉक्स के स्पीड से भी ज्यादा फास्ट भाग रहा है। ओके। तो उसमें क्या होगा कि मैं मार्केट को अंडर परफॉर्म करूंगा। तो अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके लिए ये स्टॉक्स बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको ओके। तो मार्केट को बीट करना है। बाकी के जो 3 है वो वर्स्ट है। अगर पहले 3 में भी आप हो तो क्या है कि आप पैसे तो बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े कम बनाओगे। अगर लास्ट में घुसे हो कि स्टॉक भी चल रहा है और मार्केट आपके स्टॉक से ज्यादा फास्ट जा रहा है, तो पैसे बनेंगे लेकिन कम बनेंगे। तो उसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंट है कि आपका स्टॉक्स नीचे जा रहा है, जैसे कि आपने आइडिया का बोला कि स्टॉक्स नीचे जा रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो अल्टीमेटली आप लॉस करेंगे। अगर आप बाइक में बैठे हैं तो। यस आइडिया पे बैठे हो तो यस। उसके बाद अगर कोई ऐसा स्टॉक्स है कि जो नीचे जा रहा है और मार्केट जो है यानी कि आपका जो बेंचमार्क है वो कम घट रहा है, तो भी अगेन आप अंडर परफॉर्म करेंगे। ओके। और जो लास्ट वाला है वो एक बहुत ही बड़ा इल्यूजन है उसमें कि आपका स्टॉक्स फॉल हो रहा है, मार्केट जो है वो आपके स्टॉक से ज्यादा नीचे गिर रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं आउट परफॉर्म कर रहा हूँ, आपको चार्ट पे ऐसा दिखेगा। लेकिन असल में आप आउट परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आप पैसे नहीं बना रहे हो। करेक्ट। आपका स्टॉक्स भी नीचे गया, जैसे कि पेंडेमिक में हुआ कि रिलायंस समझ लो कि 10% नीचे गया और मार्केट जो है वो 15% नीचे गया, तो आपका रेशियो चार्ट आपको बिजनेस दिखाएगा, लेकिन वो सही पिक्चर नहीं है। अगर हमें रियल पैसे बनाने हैं तो हमें तो फर्स्ट जो 2 क्राइटेरिया है कि मेरी सिक्योरिटी भी राइज हो, मार्केट अगर फॉल है तो बहुत बढ़िया है कि मैं तो सबसे सुपर परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर ये नहीं है कि मार्केट भी अच्छा है तो मैं ऐसे स्टॉक्स को चुनूं कि मेरा जो स्टॉक्स है वो मार्केट से भी अच्छा परफॉर्म करे। बाकी लास्ट वाला जो है वो आपको फंसाएगा। उसके जो 4th एंड 5th है उसमें तो क्लियरली आप लूज कर ही रहे हो, आपको दिख ही रहा है, लेकिन लास्ट वाले में तो आप इल्यूजन में ही रह जाओगे कि मैं मेरा जो चार्ट है वो तो पॉजिटिव है, एक्चुअली पॉजिटिव नहीं है वहां पर। तो इसमें हमने जो पॉइंट एंड फिगर में चेंज किया, चार्ट सेटअप वही है, उसमें कुछ चेंज नहीं है, लेकिन हमारे जो मेंटर है विठल सर और जो लोगों ने पाठशाला अटेंड की है वो लोग विठल सर को जानते हैं। तो मैं 12-15 महीने से उनके साथ बैठता हूँ, तो वो ऑलवेज एक इंडिकेटर बोलता है मस्त करके, जो मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड का डेडली कॉम्बो है। तो उसको हम रख देंगे हमारे साथ। तो जो लास्ट 4 वाले हैं वो आप ऐसे स्टॉक जो कि आपको पोटेंशियली लॉस देने के लिए रेडी है या तो लॉस देंगे, वहां से हम काफी हद तक बच जाएंगे। और फर्स्ट जो क्राइटेरिया है उसमें ही हम बैठेंगे। सो आप जो फोकस करते हैं फर्स्ट 2 पे। फर्स्ट 2 पे। ओके। अगर मेरा स्टॉक्स नीचे जा रहा है और मार्केट कम जा रहा है नीचे, तो मैं नहीं इन्वेस्टमेंट करूंगा। मेरा तो स्टॉक सुपर परफॉर्म होना चाहिए, जैसा प्रशांत सर बोलते हैं, मुझे सुपर परफॉर्मेंस चाहिए। भले ही मैं शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में आऊं, लेकिन मुझे पैसे मिलने चाहिए। अगर मेरा लॉस होता है तो भी वो कम होना चाहिए। तो एक इंडिकेटर और ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम बढ़िया रिजल्ट निकालेंगे। और आज जो हम डिस्कस करेंगे, मैं एफ एंड ओ ट्रेडर को बोलूंगा कि वो इस स्ट्रेटेजी में काम मत करे। ओके फाइन। क्योंकि एकदम से आपके पास डिफाइंड स्टॉप लॉस नहीं है और आप एफ एंड ओ में जब काम करते हो तो आपकी लॉट साइज और जो आप मार्जिन देके करते हैं वो बड़ी हो जाती है। तो क्लियरली ये स्ट्रेटेजी फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर एंड ट्रेडर के लिए ही है। अगर आप लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं वो भी हम डिस्कशन करेंगे, लॉन्ग टर्म के भी आप कर सकते हो, लेकिन एफ एंड ओ मत ट्राई करिए। एफ एंड ओ के लिए हम करंटली वर्कआउट कर रहे हैं और काफी सारी मैंने पोस्ट मेरे ट्विटर हैंडल पे डाली है कि 3 to 4% के रिस्क के हिसाब से आप कैसे काम कर सकते हैं।
तो उसका अभी टेस्टिंग चल रहा है, तो मैं अभी इस पे फ्यूचर ट्रेडर के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ बाय स्ट्रेटजी है। ओके, सो आज जो है पूरी तरह से बाइंग वाला है, यस, सेलिंग का नहीं, और उसमें भी फ्यूचर्स आप अवॉइड करो इस स्टेट। अवॉइड, यस, कंप्लीट 100%, क्योंकि मैं पर्सनली मैंने अभी तक कुछ ट्रेड फ्यूचर में लिया नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप फ्यूचर ट्रेड करिए। ये निफ्टी 500 वर्सेस निफ्टी 50 का रेशियो चार्ट है। ओके, तो उसमें हमने बॉक्स साइज ली है 0.25 की और रिवर्सल 3% का। ओके, तो मैं जो बोल रहा था कि विठल सर ने इम्प्रूव करके इसमें मस्त डलवाया और पूरी गेम हमारे लिए चेंज हो गई। तो सीधा इसका इंटरप्रिटेशन ये निकलता है कि जब वो मस्त के ऊपर है रेशियो चार्ट आपका, सो ये जो मस्त जो ग्रीन और रेड लाइन जो ऊपर से दिख रहा है, हाँ, यस, ग्रीन और रेड बार, वो आपका मस्त है, करेक्ट? यस, यस, वो मस्त इंडिकेटर है। और ये मस्त कॉम्बिनेशन ऑफ मूविंग एवरेज एंड सुपर ट्रेड। यस, यस, ग्रेट, उसको इजी इजी इंटरप्रिटेशन के लिए अच्छा डिफाइन ने बनाया है। परफेक्ट। ग्रीन रेड हो गया तो ऐसे ही विजुअलाइज में अच्छा रहता है। तो अभी जो रेशियो चार्ट है वो है निफ्टी 500 को हमने निफ्टी 50 से डिवाइड किया है। ठीक है, तो जब भी ये रेशियो चार्ट अगर ग्रीन मस्त के ऊपर है तो सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है कि निफ्टी 500 के जो स्टॉक्स है वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स को आउट परफॉर्म करेंगे। ओके, और रेड मस्त के नीचे है तो निफ्टी 50 जो है वो निफ्टी 500 के स्टॉक्स को आउट परफॉर्म करेंगे। ओके, तो वो जो हमारी स्लाइड थी इंटरप्रिटेशन वाली, वो यहाँ पर लागू होती है कि जैसे कि अगर करंट कॉलम एक्स में है तो क्या होगा कि निफ्टी 500 जो है वो निफ्टी 50 के सामने आउट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल ये है कि अगर आप एक्स देखोगे तो आउट परफॉर्म और अंडर परफॉर्मर का आपको आइडिया आ जाएगा। परफेक्ट, लेकिन पॉजिटिव मोमेंटम नहीं है, ठीक है, तो वो जो स्लाइड में पिछले जो लास्ट 4 वाले जो थे इंटरप्रिटेशन, वहां पर फॉल हो सकता है, ओके, वो कंडीशन वहां पर आ जाएगी। तो हमें क्या करना है कि ग्रीन मस्ट है तो हमारी सिक्योरिटी फर्स्ट 2 में ही आएगी। सिक्योरिटी राइज होगी, बेंचमार्क घट रहा होगा, या तो बेंचमार्क लेस स्पीड से ऊपर जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव टेरिटरी में पॉजिटिव मोमेंटम में हम बैठेंगे। एवरी ओ एंड एवरी एक्स आउट परफॉर्म और अंडर परफॉर्म हम ऐसा नहीं सीधा कॉल लेंगे, हमें पॉजिटिव मोमेंटम चाहिए। तो अगर पॉजिटिव मोमेंटम है हमारे स्टॉक्स में और वो बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है तो वो ग्रीन मस्ट के ऊपर ही होगा। ओके, सो मस्त क्लाउड के ऊपर अगर आपका रेशियो चार्ट है, सो इट यस, मींस इट्स आउट परफॉर्मिंग। आउट परफॉर्मिंग, सिक्योरिटी जो आपने जो लिया है वो आउट परफॉर्म कर रहा है। और हाँ, जो मस्त क्लाउड के अगर नीचे अगर आरएस चार्ट जो प्लॉट हो रहा है, हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो सिक्योरिटीज है वो अंडर परफॉर्म कर अंडर रहा है। परफॉर्म कर रहा है, और यस, और मार्केट में भी नेगेटिव मोमेंटम होगा। ओके, ठीक है, डिटेल में स्ट्रेटेजी डिस्कशन करने से पहले कुछ जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट कि रिलेटिव स्ट्रेंथ की इम्पोर्टेंस क्या है वो डिस्कस करते हैं, ताकि व्यूअर को पता चले कि रिलेटिव स्ट्रेंथ पे हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला जो है वो रैंडम रैंडम पीक वर्सेस रिलेटिव स्ट्रेंथ पीक। तो काफी सारे जो ट्रेडर्स हैं वो रैंडमनेस पे पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं कि भाई यहाँ से ये सिक्योरिटी ये बढ़ी, या तो ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, या तो बॉटम 10 में कोई स्टॉक्स है तो उसको उठा लेते हैं, या तो एक्सपी से वाईपी के बीच में है हिस्टोरिकली तो उस स्टॉक्स को हम पिक करते हैं। ठीक है, तो उसके सामने अभी तक का जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है वो ये सजेस्ट करता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ
की बेसिस पे अगर आप पिक करो तो आपको एक एंट्री और एग्जिट दोनों मिल सकती है। ओके। और जो रिसर्च एक पेपर पब्लिश हुआ था कि परचेजिंग द हिस्टोरिकल स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स आर सुपीरियर टू प्रॉफिट फ्रॉम रैंडम सिलेक्शन। तो उसमें ये बात उन्होंने बोली थी कि भाई रैंडम सिलेक्शन मत कीजिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ पे अगर आप पिक करोगे तो यू विल गेट बेटर रिटर्न। ओके। उसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंट है वॉलेटिलिटी। तो उसमें हम दो चीज, रिसर्च पेपर अगेन यही कहता है कि रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है जैसे कि एशियन पेंट और पीडीलाइट है, तो रिलेटिवली तो पूरे मार्केट के सामने वो ऑलवेज स्ट्रॉन्ग ही रहते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडर हो तो आपको ऐसी स्टॉक्स चाहिए जिनका बीटा ज्यादा हो, यानी कि उसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा हो। तो क्या होगा कि थोड़ा सा करेक्शन और अगेन जब वो आउट परफॉर्मेंस शुरू करे तो एकदम से वो आपकी फेवर में आए। तो वॉलेटिलिटी भी हमारी इम्पोर्टेंट चीज है कि वॉलेटिलिटी भी, यानी कि हाई बीटा थोड़ा है तो वो सुपर परफॉर्म करेगा। जैसे कि करंटली आईटीसी है तो एकदम लो बीटा स्टॉक है, तो अगर उसमें बाय आता है तो वो एकदम से आपको आउट परफॉर्मेंस वाला रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो वॉलेटिलिटी भी हमें थोड़ी अच्छी चाहिए, तो वो एक फैक्टर है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है लिमिटेशंस वाली, ये है कि हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो प्राइस का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हम रेशियो चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। तो जब हमारा स्टॉक्स आउट परफॉर्मेंस शुरू करेगा तो उससे पहले जो नीचे से ऊपर आया है वहां से उसने कुछ गेन किया है और बेंचमार्क के सामने उसने आउट परफॉर्म किया है, तो थोड़ा सा उसमें कंसोलिडेशन का फेज आ सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने रिलेटिव स्ट्रेंथ पे आपके बाय आया और इमीडिएटली आपने आउट परफॉर्मेंस शुरू कर दिया। तो ये एक पेशेंट वाला काम है कि आपने स्टॉक सही चुना, आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ और आप गाड़ी में बैठे हो, तो गाड़ी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाएगी लेकिन वो थोड़ा टाइम लेगी। सो पेशेंस रखे रहेगी। हाँ, पेशेंस वाली गेम है। और दूसरा और पेशेंस के साथ साथ आप अपना रूल ब्रेक नहीं करो। रूल मत ब्रेक करिए, उस रूल पे टिके रहो। हाँ, रूल जितने भी है वो आपको फॉलो करने हैं। ग्रेट। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वो रिटेल इन्वेस्टर वर्सेस जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर माइंडसेट है वो हमें चेंज करना है। रिटेल इन्वेस्टर क्या देखते हैं कि भाई आज कौन सा स्टॉक चल रहा है, कौन सी इंडस्ट्री का स्टॉक चल रहा है, या तो मैंने जो स्टॉक ले लिया है वो एक्स से वाई तक तो हो गया है, ठीक है, तो वो एब्सोल्यूट मोमेंटम देखते हैं कि मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल है वो रिलेटिव बेसिस पे देखते हैं, ते रिलेटिव बेसिस कंट्री टू कंट्री यानी जियोग्राफी टू जियोग्राफी देखते हैं कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है, वो देखते हैं सेक्टर टू सेक्टर स्पेसिफिक, अगेन वो फाइंड आउट करते हैं स्टॉक टू स्टॉक स्पेसिफिक कि भाई कौन सा रिलेटिव बेसिस पे अच्छा है। बीच में हम ट्रेड कर रहे थे तो हमने टाटा केमिकल का स्टॉक लिया था, उसमें हमने 30-40% बनाए। उसके बाद जो आया वो टाटा एलएक्सी का स्टॉक्स हमारे रडार में आया, तो वो 1400 रुपए पे आया था, तो हमने टाटा एलएक्सी को बाय किया, टाटा केमिकल को बेचा, एग्जिट हमारी डिलीवरी में हमने कर दी। तो टाटा केमिकल जो है वो वहां से ऑलमोस्ट 100% बढ़ा, लेकिन टाटा एलएक्सी जो है वो मोर देन 3 टाइम्स बढ़ गया। ओके। ये पावर है रिलेटिव स्ट्रेंथ की। हमने पूरा देखा, एनालिसिस किया कि भाई कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमने वहां पर अपना जो पैसा है वो वहां पर स्विच कर दिया। तो ऑलवेज रिटेल इन्वेस्टर जो है वो रिलेटिव बेसिस पे अगर सोचना शुरू करे तो अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। हमारे पास अगर कोई स्टॉक्स है जैसे कि 2008 में मैंने बताया कि मैं रिलायंस ग्रुप में स्टक हो गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज में स्टक था, इवन पावर कंपनीज जैसे कि टाटा पावर है उसमें मैं स्टक हो गया था, और इतने सालों बाद अभी उसमें बाय सिग्नल आया है बेस्ड ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ। अगर वो पैसा मैंने वहां से निकाल के मार्केट में डाला होता तो एटलीस्ट मार्केट ने भी मुझे अच्छे रिटर्न्स दिए होते। तो ये जो रिटेल का माइंडसेट है ना वो रिलेटिव स्ट्रेंथ चेंज कर सकता है अगर हम फॉलो करें तो।
हमारे पैसे आइडल नहीं पड़े रहेंगे और कांस्टेंट चर्निंग होती रहेगी। और होगा क्या कि अगर इम्पेडिंग कोई प्रॉब्लम आ रहा है कंपनी में, तो आरएस आपको पहले से बता देगा, क्योंकि स्टॉक धीरे धीरे अंडर परफॉर्म करना शुरू कर देगा और आपको एग्जिट करवा देगा। तो हम उसके बेसिस पे ही अपना पोर्टफोलियो या ट्रेडिंग करें, ताकि हमें जो मार्केट में प्राइस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। क्योंकि क्या होगा कि रिलेटिवली आपको एग्जिट करवा दिया तो आपके पैसे फ्री हो गए, तो आप नई कंपनी ढूंढो, वहां पर इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, समझ। अब आते हैं, एकदम सिंपल सी मेथड है। बॉक्स साइज हम यूज करेंगे दोनों में 3% की। अगर आप ट्रेडर हो तो भी 3% की बॉक्स साइज है, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स के कॉल लेना चाहते हैं तो भी 3% की बॉक्स साइज है। उसमें कुछ चेंज नहीं है, दोनों के लिए कॉमन है। सो ये 3% आरएस का बॉक्स वैल्यू है या प्राइस का चार्ट? नहीं, आरएस का। ओके फाइन, ठीक है। आपका जो भी बेंचमार्क है, जनरली मैं यूज करता हूँ निफ्टी 500 को। ओके। क्योंकि उनमें क्या है कि डाइवर्सिफाइड ग्रुप है कंपनीज का, तो मैं ऑलवेज प्रीफर करता हूँ निफ्टी 500। लेकिन वो भी इश्यू हम सॉल्व करेंगे। अगर किसी को निफ्टी 50 को भी बेंचमार्क बनाना है तो कैसे बनाएं। जैसे ही हमने वो स्लाइड देखी थी कि जब मस्त क्लाउड के अगर ऊपर आपका सिग्नल जो है, आपका जो रेशियो चार्ट है वो चल रहा है, ठीक है, निफ्टी 500 डिवाइड बाय निफ्टी 50 का जो चार्ट था हमारी स्लाइड में, तो अगर वो ग्रीन मस्क के यानी कि ग्रीन मस्क क्लाउड के ऊपर है तो आप बेंचमार्क जो है निफ्टी 500 रखें। ओके। अगर वो रेड क्लाउड के नीचे है तो निफ्टी 50 में करें, क्योंकि होगा क्या कि निफ्टी 500 के जो स्टॉक्स है वो ज्यादा पीटे होंगे करेक्शन के दौरान, और जो फर्स्ट रिवाइवल होगा वो निफ्टी 50 के स्टॉक से शुरू होगा। तो फ्रॉम द बॉटम अगर आपको पिक करना है, ठीक है, तो निफ्टी 50 के बेंचमार्क आप लीजिए और उसको आउट परफॉर्म करना शुरू कीजिए और धीरे धीरे निफ्टी 500 में आइए। सीधे ही आप निफ्टी 500 को भी यूज करें, पोस्ट पेंडेमिक भी आपने यूज किया है तो भी आपने आउट परफॉर्म किया है, वो हम एग्जाम्पल देखेंगे। ओके। तो फोकस अब करते हैं ट्रेडिंग पे। जो लोग एक वीक से लेके 1 महीना 2 महीना तक जो रुक सकते हैं, उनके लिए मैं बोलूंगा ट्रेडिंग स्टाइल। और जो लोग लंबे समय के लिए यानी कि 3 साल 5 साल के लिए एक ही स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, वो इन्वेस्टिंग का जो प्रोसेस है वो फॉलो करें। तो ट्रेडिंग में क्या है कि आपने 3% का रेशियो चार्ट प्लॉट कर दिया है, इसमें आप डालिए मस्त इंडिकेटर। ठीक है। जब भी आपका आप एक लिस्ट बनाए कि कौन सा स्टॉक जो है वो करंट कॉलम ओ में है, ठीक है। और वो जिस दिन एक्स में गया वो आपका बाय सिग्नल है। ओके। इसमें कहीं पर भी प्राइस नहीं आएगी। वी जस्ट फोकस्ड ऑन रेशियो चार्ट। अब रेशियो चार्ट, हाँ बोलिए। यानी सिंपल अगर हम बोले तो रेशियो चार्ट यानी आरएस चार्ट जो प्लॉट करेंगे 3% के बॉक्स पे, हाँ, और जैसे ही कॉलम ऑफ ओ टर्न इनटू कॉलम ऑफ एक्स में जाएगा तो वो मेरा बाइंग क्राइटेरिया बाय सिग्नल है। हाँ, ठीक है। सो वहां और पे आप जैसे फिर मस्त मस्त क्लाउड प्लॉट करेंगे। यस, मस्ट क्लाउड इज अ मस्ट। अगर आपको जो इंटरप्रिटेशन वाली जो स्लाइड थी उसमें जो फर्स्ट दो में अगर बैठना है तो मस्ट क्लाउड आपको चाहिए। सो सिंपल हो गया, यानी लास्ट यानी कॉलम ऑफ ओ टर्न इनटू कॉलम ऑफ एक्स में होना चाहिए। अब हम मस्ट क्लाउड, या वो मस्ट क्लाउड। परफेक्ट। बाकी तो आप आईटीसी का एग्जांपल देखेंगे कि चाहे कितनी भी बार कॉलम रिवर्सल आए, वो टू एक्स जाए, तो आपका पैसा नहीं मिलेगा, नहीं है। हाँ, और एग्जिट का एक ही क्राइटेरिया है कि करंट जो एक्स का कॉलम है जिसपे आपने एंट्री की है उसका कॉलम रिवर्सल यानी कि वो ओ में चला जाए। ओके। सिंपल कॉलम रिवर्सल का ही फंडा है। सो वहां पे जो एग्जिट के लिए जो कॉलम ऑफ ओ में जाएगा, सो बिलो मस्ट आप वेट करेंगे या कहीं पे भी? नहीं नहीं, अब वो मस्ती होगा और वहां पर हम एग्जिट कर जाएंगे। ओके, यानी जैसे ही कॉलम ऑफ
एक्स टर्न इनटू कॉलम ऑफ ओ में आएगा रेशियो आरएस चार्ट पे, सो Yes. आप एग्जिट हो जाएंगे। एग्जिट कर देंगे। यस एबव मस्ट भी अगर आता है, यस यस यस। वेरी सिंपल मोमेंटम जो है वो स्टॉक्स का कम हुआ है, समझ। इसलिए तो थोड़ा अब इसको एग्जांपल में जब आप बताएंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन काफी सिंपल है, Yes. समझ गए। हाँ, बाद में जो इन्वेस्टिंग करना है, जिनको 1 साल 3 साल 5 साल के लिए अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स बना के रखने हैं उनके लिए, तो और उसमें ये क्या ट्रेडिंग करेंगे कि कितने टाइम के लिए है ट्रेडिंग वाला? 1 वीक टू 4 to 6 वीक। ओके फाइन, ठीक है। और हाँ, और एग्जांपल में और मैंने काफी सारे ट्रेड्स किए हैं कि स्टॉक्स अगर एकदम अच्छे मोमेंटम में है तो 20-30% रिटर्न इज वेरी नॉर्मल एंड वेरी फास्ट। ओह ग्रेट। तो अब देखते हैं इन्वेस्टिंग का। तो इन्वेस्टिंग का भी सेम है, 3% का चार्ट है, मस्ट इंडिकेटर लगाना है, मस्ट के ऊपर ही होना चाहिए रेशियो चार्ट। ओके लेकिन हमारी जो एंट्री है वो कॉलम रिवर्सल पे नहीं होगी, ओके, हम डबल टॉप पे बाय करेंगे, अच्छा ठीक है, तो लॉन्ग टर्म का आउट परफॉर्मेंस मिलेगा हमें। समझ। और हमारी जो एग्जिट है वो कॉलम रिवर्सल पे नहीं है, एग्जिट जो है वो डबल बॉटम सेल है, यानी कि प्रीवियस ओ को जब ब्रेक करेगा तब हम निकलेंगे। ओके, यानी कॉलम रिवर्सल पे नहीं, डबल बॉटम सेल। यस, डबल टॉप बाय और डबल बॉटम सेल एग्जिट। ठीक है, और अबव और वहां मस्ट, पे भी सेम मस्ट का। मस्ट का, यस मस्ट का फंडा तो चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपका राइजिंग स्टॉक्स ही उसमें आएंगे। यानी आपको अपना ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग मस्त करना है तो मस्त यूज करो। मस्त, हाँ मस्त करना है तो मस्त का यूज करना पड़ेगा। सिलेक्टिंग ऑफ बेंचमार्क हो गया, जो फर्स्ट स्लाइड थी निफ्टी 500 वर्सेस निफ्टी 50 का जो रेशियो चार्ट था, कि अगर मस्ट के ऊपर है रेशियो चार्ट निफ्टी 500 वर्सेस निफ्टी 50, तो और अगर वो नीचे मस्ट के ऊपर है, हाँ जी, तो अगर मस्त के ऊपर है तो निफ्टी 500, अगर नीचे है तो निफ्टी 50। परफेक्ट। वो अगर इसमें भी आप नहीं पढ़ना चाहते हो या सिंपल यूज एक ही रखे बेंचमार्क निफ्टी 500 तो भी चलेगा, ओके ग्रेट। कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आ जाएगी इसमें। मैं निफ्टी 500 यूज करता हूँ, लेकिन रेशियो चार्ट उसका देखता रहता हूँ कि अभी लार्ज कैप में मोमेंटम है या मिड टू स्मॉल में है, वो मुझे ओके। पता चल जाता है। अब लास्ट जो फॉल थोड़े दिन पहले आया था करेक्शन, तो आप देखिए वहां पर ओ में चला गया था, ओके तो मिड एंड स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म कर रहे थे, उसमें एक हैवी करेक्शन हमें देखने को मिला था। और अगेन वो ऊपर चला गया, यानी कि एक्स में चला गया रेशियो चार्ट, तो फिर से मिड एंड स्मॉल कैप में तेजी शुरू हो गई। तो एक आपको ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा वहां पर कि भाई अभी कौन सा स्टॉक चलेंगे। और आरएस पे जब आप देखेंगे कि जैसे कि निफ्टी 500 के स्टॉक्स आपने सिलेक्ट कर लिए, या तो मैंने जो यूनिवर्स बनाया है 2 म्यूचुअल फंड का, तो कई होता क्या है कि हम बायस बन जाते हैं कि भाई बैंकिंग चलेगा या तो एक्स इंडस्ट्री के स्टॉक्स चलेंगे, वो अभी नीचे चल रहे हैं तो अब उसकी बारी आएगी, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे नेस्ट में हम बैठे थे, तो डिस्कशन हो रही थी कि भाई बैंकिंग स्टॉक्स में बाइंग करना चाहिए, तो क्लियरली दिख रहा है कि भाई बैंकिंग स्टॉक्स में अभी कोई पॉजिटिव मोमेंटम है नहीं। उसके सामने हॉस्पिटल के जो स्टॉक्स, एप्पल हॉस्पिटल, जुबिलेंट फूड, लालपत लैब, ऐसे स्टॉक्स चल रहे थे। तो आरएस का यूज करके हमने बैंकिंग को वेटेज नहीं दिया और ऐसे स्टॉक्स को वेटेज दिया। सीडीएसएल चल रहा था, एंजल ब्रोकिंग चल रहा था, तो आरएस का ये एक बहुत ही बेनिफिट है कि आपको एक जो आपका जो विजन है वो खुल जाता है कि करंटली मार्केट के लीडर्स कौन है और मुझे पैसे कहाँ पर डालने हैं। जब भी बैंकिंग की बारी आएगी तो वही पैसे मैं बैंकिंग में लेके जाऊंगा, यानी कि मेरे जो पैसे है वो आरएस मुझे ऑटोमेटिक रोट करवाएगा फ्रॉम स्टॉक्स टू स्टॉक्स एंड इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री।
और काफी सारे एग्जांपल देखेंगे कि आरएस के बेसिस पे अगर हम डिसीजन लेते हैं तो एक बड़ा कोई प्रॉब्लम कंपनी में आने वाला है तो वो हमें वार्न कर सकता है। जैसे कि ये एडीएजी ग्रुप का, सुजलोन का काफी सारा ऐसा एग्जांपल है कि आरएस अगर देख लिया है आपने तो आपके बाई थे ही नहीं तो आप वहां से बच सकते हैं। और दूसरा क्या है कि आरएस में अगर आप स्टॉक सिलेक्ट करते हो तो ऑलवेज यू गेट द इमर्जिंग लीडर्स। जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग की जो फॉर्मूला है कि एकदम से आपकी डिमांड बढ़ी, आपके प्रोडक्ट लाइन खुले हैं, तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स आपको ऑटोमेटिकली, अगर आप आरएस यूज करते हो तो आपको ऑटोमेटिक बिठा देगा, क्योंकि मार्केट जो है वो सब जानता है, प्राइस में सब इनबिल्ट है। तो आरएस ये एक देता है। और ऑलवेज मैंने कहाँ पर पढ़ा था कि आप रिस्क वहां पर क्रिएट करते हो जहां पर कोई नहीं है, और रिस्क वहां पर नहीं है जहां पर सब लोग हैं। लेकिन जो रिटेल है वो क्या करता है कि भाई स्टॉक नीचे जा रहा है तो उसको खरीदते हैं, वहां से इंस्टीट्यूशनल एग्जिट हो रहे हैं और वो लोग एवरेजिंग करते चले जाते हैं। तो जो बड़ा हाथी है वो निकल रहा है और आप अकेले होते जा रहे हो। तो वहां पर आपका हाईएस्ट और पोटेंशियल रिस्क है कि आपका कैपिटल कभी भी वापस ना आए। तो आरएस जो है वो फ्लो जहां पर है, एक्चुअल फ्लो है, जहां पर स्ट्रेंथ है, वहां पर आपको लेके जाएगा। बिल्कुल। तो अब एग्जांपल देखते हैं। जी, एग्जांपल देंगे तो थोड़ा और काफी क्लियर हो जाएगा। ये हमारा ट्रेड पॉइंट का सॉफ्टवेयर है। मैं ईओडी वर्जन ये इंस्टॉलेशन वाला यूज करता हूँ। ओके। तो पहले आप यहाँ पर जाइए तो चार्ट में हमारा पॉइंट एंड फिगर और उसमें आरएस के जो मेन्यू है वहां पर। तो एग्जांपल देखते हैं एशियन पेंट का। ये सिंपल सा चार्ट है विदाउट मस्त वाला। जी। ठीक है, तो हमारी ट्रेडर के लिए जो थियरी थी वो है कॉलम रिवर्सल पे बाय करना। ठीक है, तो अगर हम लास्ट का जो सिग्नल देखे, मैं एक्स पे अगर मैं रखता हूं तो आपको साइड में डेट्स दिखेगी, हाई डेट एंड लो डेट। जो लो डेट है वो आपको बताता है कि कौन सी तारीख पे आपका रेशियो चार्ट एशियन पेंट का एक्स में गया। 8 जुलाई को स्टॉक्स जो है उसने आउट परफॉर्म करना शुरू किया है, तो ये मेरा बाय सिग्नल है। ओके। पीछे थोड़ा जाते हैं तो उससे पहले ये जो सुपर पैटर्न है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर कर्सर रखता हूँ एक्स पे। तो 3 फरवरी 2021 सॉरी, वहां पर एशियन पेंट ने बाय सिग्नल दिया था। और वो कब तक चला? नेक्स्ट हम कॉलम में आए ओ में। तो कॉलम ओ पे आपको हाई डेट दिखेंगी 5 मई। करेक्ट। तो 3 फरवरी से आपका इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ और 5 मई तक चला। ओके। उसके बाद अगेन सिग्नल एक्स में गया, तो अगेन आपने बाय किया और ओ पे निकले। ठीक है। तो उसमें कंफ्यूजन क्या होगा कि आप अगर मस्ट का यूज नहीं करते हैं तो जो इंटरप्रिटेशन वाली जो स्लाइड थी उसमें जो लास्ट 4 वाले थे वैसे स्टॉक्स में फंस सकते हो। तो हम क्या करेंगे, उसमें मस्ट इंडिकेटर डाल देंगे। ठीक है। तो फर्स्ट जो 2 क्राइटेरिया थे वही स्टॉक्स आएंगे। तो मस्ट इंडिकेटर के ऊपर ये स्टॉक्स करीब 2011 से है। ठीक है, तो उसमें आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। तो ट्रेडर्स के लिए एक ही है, हर एक कॉलम रिवर्सल पे आप ट्रेड करते रहो। 2001 से
एशियन पेंट RS चार्ट है, एवं मस्त क्लाउड हमेशा रहा है। तो यस एवरी कॉलम रिवर्सल पे आप बाई करेंगे और यस एवरी कॉलम रिवर्सल पे आप एग्जिट हो जाएंगे। हाँ, सो बुलिश कॉलम रिवर्सल और बेरिश कॉलम रिवर्सल, बेरिश सिंपल। कॉलम रिवर्सल, यस। ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास डबल टॉप बाय है। जी तो सिंपल हम यहाँ से डबल टॉप बाय डबल बॉटम सेल ऐड कर देते हैं ताकि अच्छी तरह से। ठीक है, जब भी डबल टॉप बाय आता है, जैसे कि यहाँ पर आया था, यहाँ पर ट्रैप हुए, डबल बॉटम सेल हो गया, उसके बाद लंबा करेक्शन चला, अगेन यहाँ पर एक डबल टॉप बाय दिया, फिर करेक्शन आया, यहाँ से अगर अगेन बाय आया, अगेन ट्रैप किया, अगेन यहाँ पर एक ट्रैप हुआ, यहाँ पर ट्रैप हुआ, लेकिन उसके बाद ये जो रैली है वो एक्सपोनेंशियल रैली है। जैसे कि देखते हैं 2007 से हमारा जो सिग्नल है 2008, तो एक साल में जब मार्केट गिर रहा था तो ये स्टॉक्स परफॉर्म कर रहा था। तो ये इन्वेस्टर के लिए है, मस्क के क्लाउड के ऊपर है और आपका डबल टॉप बाय हो गया। एक थोड़ा व्यूअर्स के लिए ये क्लियर हम करना चाहेंगे कि जो जिसको हाँ, डबल टॉप बाई या डबल बॉटम सेल नहीं मालूम है, सो डबल टॉप बाई 3 कॉलम पैटर्न होता है। अभी जैसे करंट अगर लास्ट अगर हम चार्ट का देखें, सो लास्ट जो है कॉलम ऑफ एक्स में है ये रेशियो RS चार्ट। यस तो ये 3 कॉलम पैटर्न फर्स्ट क्राइटेरिया होता है। सेकेंड जो होता है व्हेन करंट कॉलम ऑफ एक्स, यानी लास्ट कॉलम ऑफ एक्स जो दिख रहा है आपको, ये करंट कॉलम हो जाता है। सो करंट कॉलम ऑफ एक्स गोज अबव द प्रीवियस कॉलम ऑफ एक्स। यस ये जो भी प्रीवियस कॉलम ऑफ एक्स के ऊपर एक एक प्लॉट होता है, उसके ऊपर एक एक, सो उसको डबल टॉप बाई बोलते हैं। डबल टॉप बाय बोलते हैं, डबल टॉप बाई डबल बॉटम सेल होता है। सेल। हाँ, और यहाँ पर हमारी सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक जो एक कमेंट्री का जो सेक्शन है वहां पर एग्जैक्ट आपको वैल्यू मिल जाएंगी। परफेक्ट। सो यहाँ पे कमेंट्री में भी आप देख सकते हो DTV वैल्यू मतलब डबल टॉप बाई वैल्यू, और DBX वैल्यू मतलब डबल बॉटम सेल वैल्यू। और वैल्यू ये ऑलरेडी लगाए हैं, ग्रीन जो दिख रहा है लाइन वो डबल टॉप बाई का है और रेड वाला वो डबल बॉटम सेल का है। बॉटम सेल वाला। अब आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं एस्ट्रल का। सेम एस्ट्रल, परफेक्ट। अगर किसी ने यहाँ से 2009 से इस डबल टॉप बाय पे एंट्री की है, ठीक है, तो पूरी जो रैली है वो 2014 तक आपको एज ए इन्वेस्टर मिली, 4 साल 5 साल के लिए। बीच बीच में भी जो ट्रेडर है वो कॉलम रिवर्सल पे ट्रेड करते रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये कॉलम रिवर्सल, यहाँ पर ये कॉलम रिवर्सल, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, यहाँ से फिर से एंट्री कर ली, अगेन आप इस कॉलम रिवर्सल पे निकले, अगेन आपको कॉलम रिवर्सल पे एंट्री मिल गई, अगेन कॉलम रिवर्सल पे आप एग्जिट हुए, अगेन कॉलम रिवर्सल पे आप एंट्री करे। तो मल्टीपल आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं। इन्वेस्टर के लिए तो 4 साल 5 साल हैवी अपसाइड मिला आपको। ठीक है। तो उसमें प्राइस चार्ट, जब एंट्री के लिए प्राइस चार्ट नहीं देखते हैं, करेक्ट? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। सो रिस्क मैनेजमेंट में एक मैं कहूंगा कि मैं कितने परसेंट का रिस्क लेता हूँ, और क्या होता है तो मैं री एंटर भी करूंगा और इमीडिएट एग्जिट भी कर दूंगा। ओके, सो ये मेथड ये तो समझ में आ गया कि आपका एंट्री क्राइटेरिया कैसे है, और ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों के लिए आप काफी अच्छे से एक्सप्लेन। बट वो स्टॉप लॉस बहुत जरूरी होता है, सो अगर इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। हाँ, तो उसमें मैं क्या करता हूँ, रेशियो चार्ट पे तो कोई डिफाइंड स्टॉप लॉस है नहीं। जैसे कि हम अगर स्टॉक्स का प्राइस देख रहे हैं तो डबल बॉटम सेल आपको एक प्राइस का ही मिलेगा, या तो कॉलम रिवर्सल मिल जाएगा, कोई भी पैटर्न का एग्जिट आपको मिलेगा। यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है रेशियो चार्ट में। आपके पास वैल्यू है, वैल्यू आपको एंड ऑफ द डे मालूम होगी, ठीक है। तो मैं जो यूज करता हूँ वो है 10% का किल स्विच। ओके।
तो सेम उसी तरह मैं क्या करता हूँ कि मेरा जो पोर्टफोलियो है करंटली मैं 25 से 30 स्टॉक्स का मैं पोर्टफोलियो बनाता हूँ। हम्म। तो उसमें मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मेरा पैसा कर देता हूँ। जो भी सिग्नल बाय का आता है तो मैं मेरे प्री डिफाइंड अमाउंट में ही मैं वो बाय करता हूँ इक्वली। और ओके। 10% का मैं डायरेक्ट स्टॉप लॉस लगाता हूँ कि एक्स प्राइस से मेरी एंट्री हुई। हम्म। जैसे कि IEX में मैंने एंट्री की 500 में, तो सीधा 50 रुपए मेरा नीचे का स्टॉप लॉस। ओके। तो सीधा अगर कुछ भी मार्केट क्रैश होता है, कंपनी स्पेसिफिक न्यूज आती है, आपका जो चार्ट है वो EOD पे बनेगा, आपको बाद में मालूम होगा कि ये X2O में चला गया। ओके, तो समझ उससे गया। पहले ही मैं 50 रुपए दे के मेरी पोजीशन काट दूंगा। ओके। और सो ये 90% मैंने देखा है कि जब हम्म। 10% स्टॉक करेक्ट होता है जी। अगेंस्ट बेंचमार्क, तो जी। नेक्स्ट डे जिस दिन मैं निकला हूँ उसके वही एंड ऑफ द डे में मुझे सिग्नल मिलता है RS पे। ओके, यानी आरएस चेंज हो जाता है। RS चेंज हो जाता है। सो ये टेन एंट्री परसेंट प्राइस स्टॉप लॉस फॉर ट्रेडिंग आप यूज करते हैं या इन्वेस्टमेंट? नहीं, इन्वेस्टमेंट में कोई स्टॉप लॉस नहीं। इन्वेस्टमेंट तो जब तक डबल बॉटम सेल नहीं आता है ओके। तब तक नहीं निकलना है, क्योंकि वो तो लंबा खींचेगा। ओके, तो ये ये टेन सिर्फ परसेंट फॉर ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग के लिए, हाँ। ओके, ग्रेट। सो ये एक और यहाँ 10% जो आप यूज करते हैं, ये हाँ एग्जिट क्राइटेरिया यानी आपने यूज किया है स्टॉप लॉस के लिए। हाँ सो आम अगर जनरल बात ये करें तो 3% थोड़ा स्टॉप लॉस यूज होता है, ठीक है, बड़ा स्टॉप। हाँ। सो ये आपके माइंड में 3% का कहाँ से, कुछ ऑब्जर्वेशन से आया या क्या, कैसे आप यूज ये किए कि 10% क्यों? या दूसरा, जो आपको गैप अप या गैप डाउन से ये डर नहीं लगता कि एक साथ आपका स्टॉप लॉस बड़ा हिट होगा? नहीं 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 नहीं, क्योंकि हम जो है वो ऐसी सिक्योरिटीज पसंद करते हैं जो कि ऑलरेडी सुपर परफॉर्म कर रही है अगेंस्ट हम्म। मार्केट। हम्म। तो सो जितने भी आपका गैप डाउन हुए हैं उसमें मेरा स्टॉप लॉस एकदम से कभी भी हिट नहीं हुआ है। स्टॉक स्पेसिफिक या इंडस्ट्री स्पेसिफिक अगर रीजंस है जी। तो वो गैप डाउन हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ओके, सो आपका इनिशियल स्टॉप लॉस आप थोड़ा बड़ा रखते हैं कि इमीडिएट वोलेटाइल हो तो उसमें आपका हिट नहीं हो, यही रीजन हाँ है हाँ हाँ, यस। ना? ओके। अगर मान लो कि मेरा स्टॉक 20% मेरी प्राइस से बढ़ गया है, जी। तो जब रेशियो में रिवर्सल होगा, कॉलम रिवर्सल, तभी मैं एग्जिट करूंगा। अच्छा, एक और, प्रॉफिट। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टॉक जो है 100 का 200 हो गया, आपका 100 में बाई किए और 200 हो गया, ठीक है, और इनिशियल स्टॉप लॉस आपका 10% नीचे, यानी 100 में बाई किए तो 10% नीचे, 10 रुपीज आप नीचे आप रख देंगे, यस। तो 90 स्टॉप लॉस रहेगा। अब स्टॉक हाँ। 200 हो गया है, तो आपका ट्रेलिंग यस। स्टॉप लॉस कुछ रहेगा या 90 ही रहेगा हमेशा? नहीं नहीं, वही 90 ही रहेगा। जब तक मुझे ओके। रेशियो बाहर नहीं निकलता है कॉलम रिवर्सल के जरिए, तब तक मैं नहीं भागूंगा। सो आप ट्रेल स्टॉप लॉस नहीं करते, इनिशियल स्टॉप लॉस ही आप कंटिन्यूअस फॉलो करते हैं? यस यस, अगर अगर किसी को करना है तो वो जी। प्री डिफाइंड प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं कि भाई मेरा एक्स से वाई तक पहुंचा है तो मैं थोड़ा पैसे निकाल लूं। सो आप प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी आप नहीं करते हैं, ट्रेलिंग स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हैं? और इसमें विप्सो भी हम देख लेते हैं साथ साथ में कि जी। विप्सो भी आएंगे। जो 2014 से एस्टल में हम देखें तो काफी सारे विप्सोस भी आए हैं। जैसे कि हम्म। मेरा कर्सर है, तो यहाँ से डबल टॉप बाय आया इन 2016। हम्म। अगेन थोड़े ही महीने में डबल बॉटम सेल कर दिया हम्म। और ट्रैप हो गए। हम्म। ठीक है, कॉलम रिवर्सल वाले भी ट्रैप हुए और जिसने डबल टॉप बाय भी किया उसका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। दोनों जी। को लॉस सहना पड़ा। लेकिन जी। यहाँ से जो पैसे बना के आप आए हो उसके सामने हम्म। ये जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा नहीं होगा। हम्म। उसके बाद जो है अगेन 2070 से आपको जो रैली मिली वो 3 साल के लिए मिली। हम्म। तो जितने भी ट्रेडर और इन्वेस्टर है उन सभी अगर प्रॉपर सिग्नल फॉलो किए तो पैसे बने हैं। हम्म। अगेन उसके बाद एक ट्रैप हुआ ये 2020 वाला।
यहाँ पर भी एग्जिट आपको दिया, अगेन एक बाई सिग्नल आया, अगेन आपको ट्रैप किया और अगेन बाई सिग्नल में अभी चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपने आरएस लगा ली, मस्ट के ऊपर है तो आपको लॉस नहीं होगा या तो आपके ड्रॉडाउन्स नहीं आएंगे। अभी तक जो मेरे ड्रॉडाउन्स आए हैं वो 6 से 7 कंटिन्यू आए हैं, उससे ज्यादा नहीं आए हैं। ओके, और कंसेक्यूटिव लॉस 6 से 7 बार हुई है। यस यार, और हर एक बार 10% का स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, क्योंकि आरएस का जो चार्ट है, आरएस का जो फंडा है वो क्या है कि अगर आपका स्टॉक्स आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है और आपका बेंचमार्क ज्यादा बढ़ रहा है तो भी आपको कॉलम रिवर्सल में लेके जाएगा और 3% से आपका एग्जिट हो जाएगा। बराबर, सही है। अभी मेरा जो कल हुआ था वो टाटा केमिकल में हुआ था, तो करीब करीब 3% का ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ ओके, और मैं निकल गया। तो ऑलवेज 10% इज अ किल स्विच, कि 10% से ज्यादा तो मैं लूंगा ही नहीं। ओके, समझ गया। रेशियो चार्ट का भी मैं वेट नहीं करूंगा, मैं निकल जाऊंगा। ठीक है। बहुत ही बढ़िया एक कंपनी है, सभी के पोर्टफोलियो में होगी, वो हम डिस्कस करते हैं, कॉल इंडिया। सीधा सीधा सा है, कोई भी बाय सिग्नल यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। एक ही फंडा है, मस्त के नीचे है। ओके। तो आप अगर देखते हैं कि भाई ओ से एक्स में चला गया है रेशियो चार्ट में, तो अब तो ये स्टॉक चलेगा। ठीक है, नहीं चलेगा क्योंकि वो उसका मोमेंटम ही नेगेटिव है। अच्छा। तो जो लोग रेशियो चार्ट देखते होंगे उन्होंने कभी कॉल इंडिया के शेयर्स बाय नहीं किए होंगे। डबल टॉप बाय आया है तो भी बाय नहीं करेंगे, कॉलम रिवर्सल आया है तो भी बाय नहीं करेंगे, क्योंकि मोमेंटम नेगेटिव है। तो ये जो मैं बात कर रहा था कि इम्पेडिंग अगर कोई इश्यू चल रहा है कंपनीज में या तो बिजनेसेस में, तो वो आपको मस्ट वार्न कर देगा कि भी यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम है ही नहीं, अब यहाँ पर मत इन्वेस्टमेंट करो या तो ट्रेडिंग ही मत करो। इसमें दोनों लोग बचेंगे वहां पर। आइसर मोटर हम देखते हैं, वो भी एक बहुत बढ़िया कंपनी है। ये आइसर मोटर का है जो 2009 से रॉयल एनफील्ड बुलेट की जो एकदम से डिमांड हुई थी रिवाइवल, यहाँ से लेके यहाँ तक काफी एक स्ट्रॉन्ग चार्ट था और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में भी स्टॉक रहा जी। जितने डबल टॉप बाय है वहां से और भी ऊपर गया। जितने कॉलम रिवर्सल थे वो जो है वो आप बॉक्स साइज देखिए तो नॉट मोर देन 3 to 4 ओवर्स, यानी कि जो करेक्शन है वो थोड़ा सा ही चलता है और फिर से स्टॉक्स भागना शुरू हो जाता है। सो अगर इन्वेस्टर के लिए देखें तो वो कहीं भी डबल बॉटम सेल दिया ही नहीं, सीधा एक बार यहाँ पर आया, ट्रैप किया और 2011 से यहाँ से आपने पैसे बना के निकले। अगेन 2011 से आपका जो एग्जिट है वो 2018 में आया। 7 साल तक जमकर पैसे अगर देखे तो हीरो मोटर ने पैसे आपके लिए नहीं बनाए। समझ गया, बहुत अच्छा। कंपेयर करेंगे तो आइसर ने बनाया पैसा। लास्ट जो मेरे बेस ट्रेड है उसमें से एक है CDSL, वो मैं दिखाता हूँ। नई लिस्टिंग वाली कंपनी है। ओके जी। जब से वो लिस्टिंग हुई वहां से उसका प्राइस जो है वो नीचे ही जा रहा था। तो आपको डबल बॉटम सेल डबल बॉटम सेल डबल बॉटम सेल दे रहा था। यहाँ से जो है वो मस्त के ऊपर आया, फर्स्ट बाय सिग्नल आया, एक बार आपको ट्रैप किया यहाँ पर और फिर से ये जो रैली थी वहां पर करीब करीब हमने 60% प्रॉफिट लिया। ये कंपनी मैंने कहाँ से चुनी वो भी हम डिस्कस करते हैं कि परागपरिक के म्यूचुअल फंड में उन लोगों ने डिलीवरी में लिए है। ओके। तो मेरा जो यूनिवर्स है वो फिक्स था, मुझे पता था कि कहाँ कौन से स्टॉक्स में मुझे एंट्री करनी है, मेरे पास सिस्टम थी, तो मैंने CDSL पिक कर लिया। तो यूनिवर्स बनाना इतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी आपके पास जो स्ट्रेटजी है वो आप यूज करें, लेकिन प्रॉपर यूनिवर्स है। अगर प्रॉपर यूनिवर्स नहीं है तो आप क्या करेंगे कि आइसर मोटर चल रहा है, ऑटो में तेजी है, तो आप देखेंगे हीरो मोटर में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आइसर मोटर एकदम से भाग रहा है तो हीरो मोटर भी बढ़ेगा। लेकिन वो जो थी वो RS, अगर आपने लिस्ट बनाया है तो RS आपको दिखाता है कि भी हीरो मोटर नहीं आइसर में तेजी है।
ओके, तो आंसर में पोजीशन बनाओ, तो आपके पास वो यूनिवर्स होना चाहिए। ठीक। आईटीसी का देखते हैं, काफी सारे लोग मेरी तरह उसमें, मैं जो 2008 में रिलायंस में फंसा था, इसी तरह भी आईटीसी में फंसे हैं। हम्म, तो आईटीसी का जो बिलो मस्त है वो 2019 से चल रहा है, हम्म, यानी कि वो नेगेटिव मोमेंटम में है। हर एक उछाल पे आईटीसी अंडर परफॉर्म कर रहा है। पेंडेमिक के फॉल के दौरान आई थिंक 135 तक चला गया था, वहां से स्टॉक हम्म, रिकवर हुआ है, लेकिन अगेंस्ट निफ्टी 500 वो आउट परफॉर्म ब्रॉडरली पॉजिटिव मोमेंटम के साथ नहीं कर रहा है। हम्म, तो इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों के लिए यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है हम्म, एरियाज में। ये है यहाँ, ये 2008 जो मार्केट में क्रैश हुआ, उसके बाद ये सारे सिग्नल जो है वो आईटीसी के फेवर में गए थे, ओके, और प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट डबल हुआ था। अगर आप ओएचएलसी चार्ट पे जाके देखिए कि जिस दिन से ये मोमेंटम पॉजिटिव हुआ, तो वहां से यहाँ तक प्राइस की मूवमेंट किया थी, तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका था। यानी कि प्राइस वाइज जैसे सुजलॉन का एग्जांपल लेते हैं, उसका एक टाइम की वर्ल्ड की सेकंड लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी थी सुजलॉन। जी, तो रेशियो चार्ट में सिंस लिस्टिंग एक भी बार, यहाँ पर सिर्फ एक बार 2014 में बाय सिग्नल आया था, लेकिन हम्म, लिस्टिंग के बाद एक भी बाय सिग्नल नहीं था, क्योंकि मस्त के नीचे। हम्म, अगर मस्त का यूज नहीं करते हैं और सिंपल कॉलम रिवर्सल रेशियो चार्ट पे कॉलम रिवर्सल अगर हम ट्रेड लेते हैं, तो हम्म, एवरी टाइम वी गॉट द ट्रैप। हम्म, तो मोमेंटम पॉजिटिव फेवर में था ही नहीं, वो मस्त दिखा रहा था कि मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, ये रेशियो चार्ट मस्त के सुपर ट्रेंड के नीचे भी है, तो उसमें मत जाओ। सो अगर मस्त सिंपल क्लाउड के ये नीचे। नहीं, हाँ ये टूल अगर नहीं लगाया होता मस्त का, तो हम्म, क्या हम करते कि भाई कोई भी डबल टॉप बाय पकड़ लो या तो कॉलम रिवर्सल पकड़ लो, अगेन हम्म, हमारा स्टॉप लॉस हिट। तो हमें क्या लगेगा कि आरएस वर्क नहीं कर रहा है। आरएस वर्क तो कर रहा है, लेकिन मस्त इंपॉर्टेंट है। आइडिया आप जो बोल रहे थे, since 2014 not a single positive momentum, जितने परफेक्ट। भी बाय सिग्नल सेल। अभी का एक ट्रैप वाला एग्जांपल दिख रहा हूँ अल्केम का, जी, जिसमें ट्रैप हुए थे, पॉजिटिव मोमेंटम में है, मस्त के ऊपर है, हम्म, एंकर, सैलो करेक्शन हम्म, और डबल टॉप बाय, हम्म। और वहां से फेंक दिया स्टॉक को। सो इसमें आपका यानी मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना गया होगा ये वाला केस में, कुछ याद है? मैक्सिमम 10% से ज्यादा अभी तक मैंने नहीं दिया है। नहीं, ये अल्केम में कितना, यानी 10% से ज्यादा गया है या सॉरी, टेन नहीं नहीं परसेंट ही नहीं गया है, नहीं, 10% से कम गया है? 10% से कम दिया है। ओके फाइन, ठीक है। एमसीएक्स ऐसा एक स्टॉक्स है जिसका मेरा करीब करीब 8-8.5% का ही स्टॉप लॉस हिट हुआ था, और कॉलम रिवर्सल में चला गया था, मेरा एग्जिट हो सो गया था। अभी तक आप जब जब से ट्रेडिंग कर रहे हैं, सो मैक्सिमम आपका यानी 8 साढ़े 8% का स्टॉप लॉस हिट हुआ है? हाँ हाँ, अगर गैप डाउन एकदम से कंपनी स्पेसिफिक आया तो सो हो सकता है। पॉसिबल, ठीक है। सो तो ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है आपकी पोजीशन साइज। करेक्ट, उसी पे हम आ रहे थे कि अभी तक हम लोग जो डिस्कस किए, एंट्री हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, आप अपना ट्रेलिंग भी समझा दिए। सो कहीं पोजीशन साइजिंग को पे कुछ डिस्कस करते। सो यस आप यस, बताने वाले जी, कंटिन्यू कीजिए, मुझे सच है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो 10 स्टॉक्स की तो पोजीशन आपको किसी भी स्ट्रेटेजी पे बनानी है, मिनिमम 10 पोजीशन। ओके, एक एक से आप स्टार्ट करके 10 तक पहुंचिए, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो। अगर आप नॉर्मल ट्रेडर हो, ठीक है, तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के जो जितने भी रिसर्च पेपर अभी तक पब्लिश हुए हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि 20-25 या तो 30 स्टॉक का जो पोर्टफोलियो है, वो क्या होता है कि एकदम फ्लक्चुएट नहीं होता है।
तो उसका जो नीरज अगर रीजन है पीपीटी वो, में अगर कुछ होगा तो पीपीटी आप शो कर सकते हैं। हाँ है। जी। सो ये सभी एग्जांपल है जो हम लोग डिस्कस किए यस। अभी। जी। स्टॉक्स वर्सेस स्टॉक्स के भी एग्जांपल हम लेंगे। यस, ये जो यहाँ पर मैंने क्लियरली लिखा है कि अगर आप रिस्क टेकर हो तो एटलीस्ट 10 पोजीशन तो आपको बनानी ही चाहिए। हम्म। और रीजनेबल डाइवर्सिफिकेशन के लिए स्टडीज ये बोलता है कि 25 से 30 स्टॉक का अगर आपका पोर्टफोलियो है तो आपके चांसेस है कि आप आउट परफॉर्म अच्छी तरह से कर सको। और पोर्टफोलियो में इन एंड आउट, या तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो फिगर है वो एकदम से बढ़ेगा भी नहीं और घटेगा भी नहीं, क्योंकि आप रीजनेबली डाइवर्सिफाइड हो। अगर समझो कि मैं 30 स्टॉक्स का अभी पोर्टफोलियो रन करता हूँ, ठीक है, और इक्वली मैंने पोर्टफोलियो क्रिएट किया है इक्वल अमाउंट का, और मेरा 10% का स्टॉप लॉस गया है, तो ओवरऑल कैपिटल बेस से मेरा कितना लॉस हुआ? एकदम कम होगा। जी। जैसे कि 30 लाख का पोर्टफोलियो है मेरा, और मैंने 1 लाख की पोजीशन ली और 10% का स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो वो माइनर ही जाएगा। तो ऑप्टिमल पोजीशन साइज एकदम इम्पोर्टेंट है। ओके। ये पोजीशन साइजिंग के अलावा और कुछ अगर आपका पॉइंट है जो डिस्कस करने का, तो वो हाँ डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर और एग्जांपल देख लेंगे। हाँ, हेजिंग का जो है वो काफी सारे लोग पूछते हैं कि हेजिंग करना है या नहीं करना है। जी। तो मैं क्लियरली हेजिंग नहीं करता हूँ, ओके। क्योंकि मेरा जो अलोकेशन है वो एक फिक्स है। मैं 25 से 30 स्टॉक्स का रीजनेबली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करता हूँ, और मेरा जो एग्जिट क्राइटेरिया है किल स्विच वाला, उससे मुझे मेरा जो पोर्टफोलियो है वो रिलेटिवली स्टेबल रहता है। ओके। और अंडर परफॉर्मर वाले निकलते रहते हैं, आउट परफॉर्मर वाले ऐड होते रहते हैं। तो कहीं पर भी मैं पर्सनली हेजिंग नहीं करता हूँ। ओके, ग्रेट। स्टॉक्स वर्सेस स्टॉक्स के भी कुछ चार्ट देखते हैं। ठीक है। जैसे कि अभी ब्रेकआउट आया है इन्फोसिस में, इन्फोसिस वर्सेस टीसीएस में। सालों से जो है वो टीसीएस इन्फोसिस को आउट परफॉर्म कर रहा था। अगर मैं 45 डिग्री ट्रेंड लाइन यहाँ पर प्लेस करता हूँ, कुछ प्रॉब्लम है, आप ठीक है। यस यस, ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन। तो अबोव मूविंग एवरेज इन्फोसिस वर्सेस टीसीएस में बाय सिग्नल पड़ा है, ठीक है। तो अगर मुझे स्टॉक्स टू स्टॉक सेम इंडस्ट्री में करना है तो अभी मैं जाऊंगा इन्फोसिस के साथ। यानी इन्फोसिस आउट परफॉर्मेंस अपना स्टार्ट किया है। हाँ। जी, ठीक है। सेम ही एक एग्जांपल था टाटा स्टील वर्सेस जेएसडब्ल्यू स्टील का। इसने भी बेरिश ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक की है। जी। तो सालों से जो जेएसडब्ल्यू स्टील टाटा स्टील को आउट परफॉर्म कर रहा था, उसकी बजाय मैं चूज करूंगा टाटा स्टील को। ओके, ग्रेट। तो सेक्टर वर्सेस सेक्टर, इंडेक्स वर्सेस इंडेक्स, स्टॉक वर्सेस स्टॉक्स और स्टॉक्स वर्सेस इंडेक्स, ऐसे हम आउट परफॉर्मर को ढूंढ सकते हैं कि एक्चुअली मेरे पैसे कहाँ पर लगने चाहिए जो कि कम समय में मुझे ज्यादा रिटर्न दे और रिलेटिवली मेरा रिस्क कम हो। जहाँ पर काफी सारे इंस्टीट्यूशंस है वहां पर मैं जाना चाहता हूँ, जहाँ पर कोई नहीं है वहां पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। ये जो है वो तो मैंने मेरा यूनिवर्स बताया, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी यूनिवर्स में आप काम कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो लेकिन वीजीएम का कंसेप्ट ये है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के जो गुड क्वालिटी स्टॉक्स है, ग्रोथ के जो गुड क्वालिटी स्टॉक्स है, उसमें हम मोमेंटम फाइंड आउट करके ट्रेड करें।
कई बार ये होगा कि आपका 10% का किल स्विच हो गया, स्टॉक्स में रिवर्सल नहीं आया, कॉलम रिवर्सल नहीं आया है, तो आप जी। री एंटर कैसे करेंगे? तो उसमें सेम ही है, जिस दिन आपने जो स्टॉक्स लिया था कॉलम रिवर्सल के बेसिस पे एज ए ट्रेडर, तो वो प्राइस अगर दोबारा क्रॉस होती है तो अगेन आप बैठ जाओ। ओके फाइन। होता नहीं है, अभी तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है कि एग्जिट करवा दिया 10% किल स्विच से और अगेन एंट्री करनी पड़ी। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा ऐसा कुछ जैसा कि जियो पॉलिटिकल कुछ न्यूज आ गई और एकदम से मार्केट गिर गया और आपका स्टॉप लॉस भी लेके गया और बाद में पता चला कि ये तो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं थी, मार्केट ने रिकवर कर लिया, तो अगेन वो स्टॉक सब क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप री एंटर कर सकते हो। हेजिंग का हो गया कि हेजिंग मैं पर्सनली नहीं करता हूँ ड्यू टू पोजीशन साइजिंग एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप वीजीएम के स्टॉक्स में नहीं है, आपका अपने खुद का यूनिवर्स कुछ फंडामेंटल तरीके से निकाला है, तो जनरली आप ऐसी कंपनीज में मत सिस्टम को यूज करिए जो कि एनएससी के एएसएम सर्वेलियंस में आती हो। उसमें एक और है जीएसएम सर्वेलियंस मेजर। हाई डेट वाली कंपनीज में मत जाओ, क्योंकि कभी भी इंडस्ट्री टर्न होगी तो आप वहां से निकल अगर नहीं पाओ, जैसे कि एडीएजी ग्रुप में हुआ, स्विट्जरलैंड में हुआ कि हाई डेट चलता गया, प्रोमोटरों ने प्लीज किया था, फिर बिजनेस वापस आया ही नहीं, तो आप ऐसी कंपनीज को पहले से ही अवॉइड कर दीजिए। उसके बाद क्या है कि इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है ही नहीं, छोटी छोटी कंपनी होती है जहां पर कोई इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहता है, तो वैसे स्टॉक्स को भी आप अवॉइड कर सकते हो। पेनी स्टॉक्स में कोई थियरी नहीं चलेगी। जो डाउ थियरी का जो बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि फ्रीली ट्रेडेड मार्केट सिक्योरिटी ट्रैवल्स इन ट्रेंड। तो अगर लिक्विडिटी नहीं है, पेनी स्टॉक्स नहीं है, कोई ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, तो वो उसके जो सिग्नल्स होंगे वो प्रॉपर कोई भी चार्टिंग मेथड में आपको नहीं आएंगे, तो ऐसे स्टॉक्स अवॉइड करिए। प्रमोटर के हाई प्लेजिंग वाले जो स्टॉक्स है उसको भी आप अवॉइड करिए। इंस्टीट्यूशनल निकल रहे हैं तो भी आप अवॉइड कर सकते हो। ओके। और कुछ सर एग्जांपल या आपके जो भी क्वेश्चंस है? जी, काफी अच्छे से आपने ये थे कि जितने ये क्वेश्चन थे हम इसलिए बार बार बीच बीच में ही इंटरेक्ट कर रहे थे और हाँ, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन मैंने कवर कर लिया है व्यूअर्स के लिए। लेकिन फिर भी हाँ, अगर व्यूअर्स अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, सो हाँ, नीश भाई का ये ईमेल आईडी आपका, ओके, ट्विटर हैंडल है नीश कुमार जान यस, @ सो अगर आपका और आपका ईमेल आईडी अगर होगा तो वो भी आप शेयर कर देना। ओके, यस, मेरा जो नाम है वो स्मॉल लेटर में निशस कुमार जानी @gmail.com। ओके, सो आप उस पे भी मेल कर सकते हो या info@definance.com, वहां भी यस, अगर आप मेल करते हैं तो हम लोग इनको फॉरवर्ड कर देंगे और आंसर आएगा तो व्यूअर्स आपको यस, मिल जाएगा। हाँ, सो कभी भी मेरे डायरेक्ट ट्विटर पे भी आप मुझे मैसेज डाल दीजिए, मैं इमीडिएट रिप्लाई करता हूँ। ओके, सो थैंक यू नीश भाई, काफी अच्छे से आपने समझाया। आपका एंट्री, आपका जो एग्जिट क्राइटेरिया, उसके बाद जो किल स्विच वाला जो था हाँ, 10% का जो आपने रखा, ये सब कुछ अमेजिंग। यानी एक जो ट्रेडर को एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग कैसे करें। अब हाँ, आपने 10% स्टॉप लॉस, तो 10% का मतलब 10% ऐसा नहीं कि स्टॉक्स नीचे आया तो हम एग्जिट हो गए, या 10% का फिर से 15% कर दिए या 20% कर दिए, जैसे जैसे नीचे आ रहा है करके, वैसा नहीं है आपका। काफी अच्छा अच्छे से आपने सभी टॉपिक को कवर किया, बिकॉज एक ट्रेडर को वही एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट ही जरूरी रहता है। सो आप ट्रेडिंग हाँ, करते हैं। थैंक यू सो मच नीश भाई, थैंक यू। थैंक यू राजू सर। एंड मेरी जो यहाँ पर अहमदाबाद नेस्ट की जो टीम है, मेरे जो मेंटर है विठल सर, मनीष भाई और मेरे जितने भी कलीग्स है, उन सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मुझे ये सब करने के लिए एक माहौल दिया, एक माइंडसेट दिया, उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है। तो ये जो थैंक यू है वो सब में बटेगा।
ओके, थैंक यू, और थैंक यू। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डिफाइन एज ने जो सॉफ्टवेयर तैयार किया है, प्रशांत सर और आप लोगों ने जो सॉफ्टवेयर तैयार किया है, दैट इज अमेजिंग। थैंक यू निश भाई।